Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new chapter that is Bholi, chapter number 9 from NCRT book Footprint Without Foots of standard 10. Now, dear student, this will be the last chapter uh, from this book, and you all are aware about the latest syllabus for English, that many chapters have been deleted. So this is the last chapter which we are going to read, and since this chapter is long, so it will take 3 to 4 days to complete, since we are going a line by line explanation of the chapter. So stay tuned with the channel, do watch the video, complete video, so that you can have the understanding of whole story, and it will be quite helpful for your writing work. Whenever you will get question from the chapter, you can be able to write by your own. So let's begin. It's a story of Bholi. So the introduction to the lesson will do Bholi's story written by K.A. Abbas. एक स्टोरी है जो के अब्बास के द्वारा लिखा गया है, and the story revolves around the girl who, due to accidental fall and disease in her childhood, faces the problem of being dull and ugly. तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है एक ऐसे लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो मतलब एक्सीडेंटली फॉल हो गई थी, और उसके बाद उसको डिजीज़ हुआ उसके बचपन में। और उसके बाद से वो कैसे बहुत सारे प्रॉब्लम को वो फेस करती है, क्योंकि वो काफ़ी डल थी और अगली भी थी, तो इसके कारण उसको काफ़ी प्रॉब्लम होता था। इसके इर्द गिर्द ही एक कहानी घूमती है। शी इज़ ऑलवेज अ टारगेट बाई एवरी वन फॉर नॉट बींग गुड लुकिंग एंड इंटेलिजेंट, और उसको मतलब लगभग लगभग हर पल इस चीज़ को झेलना पड़ता है कि वो अच्छी दिखने में नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, इस तरह का जो है बात उसको सुनने को मिलता है। Her life turns when she joins a nearby school where her teacher encourages her and helps her to become a learned and confident person. बाद में जो है उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है जब वो एक अपने पास के स्कूल में स्कूल जाना शुरू करती है, स्कूल ज्वाइन करते हैं। तो उसकी टीचर जो है उसको काफ़ी इनक्रेज करती है और उसको काफ़ी मदद भी करती है कि वो एक काफ़ी शिक्षित और काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन बन सके। Later in the story, circumstances arises where Woli has to give acceptance to the marriage with an unequal match, but rejects it when she sees her father pleading to the bridegroom when he demands dowry. The story shows the rise of a girls against social injustice. बाद में इस कहानी में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे भोली को जो है एक्सेप्टेंस देना होता है कि उसको एक अपने से अनइक्वल मैच के साथ में उसको शादी करनी होती है, लेकिन बाद में फिर भोली जो है उस एक्चुअली शादी को मतलब मना कर देती है, क्योंकि जो ब्राइड ग्रूम जो होते हैं वो डॉरी का डिमांड करते हैं और उसके कारण से कुछ दिक्कतें होती है। तो ये पूरी कहानी जो है आपका एक सोशल इनजस्टिस के खिलाफ में एक लड़की कैसे खड़ी होती है उसके ऊपर में ये स्टोरी है। सो लेट्स बिगिन, विल रीड एंड फाइंड आउट वाई इज भोली फादर वरीड अबाउट हर, for what unusual reasons is Bholi sent to the school. So let's begin. Now I'll go through the line by line explanation as I have told you. So let's read the first part. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi. The simpleton, she was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot and her head and her perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained
a backward child and came to be known as Bholi the simpleton, right? तो ये एक्चुअली मतलब कहानी जो है एक ऐसे लड़की के बारे में। हियर आई मीन कॉट मीन्स बेड। कॉट का मतलब बेड होता है, ठीक है। और आपका बैकवर्ड मतलब थोड़ा स्लो लर्नर जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे बैकवर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, और इसमें जो नैरेटर है वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे लड़की का नाम जो है मतलब भोली पड़ा। एक्चुअली में पहले उसका नाम सुलेखा होता है, और वो मतलब नंबरदार लाल रामलाल जो है मतलब ही इज़ अ लैंडलॉर्ड, उनकी बेटी सुलेखा, जिसको बाद में भोली बोला जाता है बचपन से। क्यों बोला जाता है उसके पीछे की कहानी जो नैरेटर बताते हैं। शी वॉज कॉल्ड सो फॉर बीइंग अ सिंपल्टन एंड अ स्लो लर्नर, क्योंकि ये सारी घटना तब हुई थी जब वो शी वॉज 10 मंथ्स ओल्ड ओनली। तो वो बेड से नीचे गिर गई थी। ऐसा होता है जनरली, बच्चे खेलते खेलते बचपन में नीचे गिर जाते हैं, और उसके कारण उसके दिमाग पे थोड़ा चोट लगा था। तो इसके कारण वो मतलब स्लो लर्नर हो गई, धीरे धीरे चीज़ों को सीखना उसकी आदत हो गई थी। किसी भी चीज़ में स्लो होती थी, और उसको सीधे मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो इसीलिए उसको भोली नाम दे दिया गया। नाउ एट द बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved. Only the eyes were saved, but the entire body was. Hold on just 1 second. But the entire body was permanently disfigured by the deep black pock marks. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. Now you can see here, in pock marks is the spot marks on the skin. पॉक मार्क्स जो आप स्किन के ऊपर स्पॉट्स होते हैं उसको पॉक मार्क्स बोलते हैं हम लोग, ओके। एंड दूसरा आप स्टैमर्ड का मतलब यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन। स्टैमर्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में आप बता सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये पॉक मार्क्स हो गया आपका स्टैमर्ड का मतलब। फिर उसका मिमिक्ड मीन्स कॉपी करना या इमिटेट करना, किसी का मजाक उड़ाना, है ना। तो पॉक मार्क्स का ये आपका स्टैमर्ड का मतलब मैंने नहीं बताया, बट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। सो व्हेन शी वाज बॉर्न शी वाज वेरी फेयर एंड ब्यूटीफुल। नरेटर बताते हैं कि जब उसका जन्म हुआ था सुलेखा का, भोली का, तो काफ़ी फेयर थी और ख़ूबसूरत देखने में थी। लेकिन जब वो 2 साल की थी तो उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिसको हम लोग लाइक उसको कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, चेचक बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड चेचक, राइट। और उसके कारण जो है उसके पूरे शरीर पे स्पॉट हो गया था, पूरे शरीर पे स्पॉट रह गया था। सिर्फ उसका ओनली हर आइज़ वर सेव्ड फ्रॉम इट, उसका आँख जो है इस चीज़ से बचा था। एंड शी स्टार्टेड स्पीकिंग व्हेन शी टर्न 5, और बोलने में उसने काफ़ी समय ले लिया। उसकी मतलब कंप्लीट सेंटेंस करने में उसको काफ़ी समय लग गया, करीब 5 ईयर्स का टाइम लग गया। एंड वो फंबल करती थी बोलते हुए, तो दैट वाज द रीज़न कि काफ़ी उसको लोग काफ़ी जो दूसरे बच्चे थे उसको कॉपी करते थे, उसका मजाक बनाते थे। और इसके कारण जो है दिस मेड हर फील सो बैड, एंड दैट्स वाई शी स्टॉप्ड स्पीकिंग। इसलिए उसने बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। नेक्स्ट है, रामलाल हैड 7 children, 3 sons, 4 daughters, and youngest of them was Bholi. It was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were
healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangla's marriage, had also been settled. And when that was done, Ramlal would think of the third Champa. They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. But Ramlal was worried about Holi. She had neither good looks nor intelligence. तो इसमें हम देख सकते हैं कि इन दिस पैरा फ्रॉम हियर टू हियर प्रॉस्पेरियस का मतलब होता है डूइंग वेल, समृद्ध जिसको बोलते हैं, या रिच। प्लेंटी का मतलब लॉट्स। ये सारे वर्ड मीनिंग्स है, उसको आप देख सकते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। तो इसमें नैरेटर बताते हैं कि रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें 3 3 सन्स थे और 4 लड़कियां थी उनकी, और भोली उनमें सबसे छोटी थी। रामलाल एक काफ़ी अमीर किसान थे, और इसके कारण उन्होंने अपने फैमिली के लिए अच्छा खाना, अच्छा पीना, सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया। उनके जितने भी सारे बच्चे थे काफ़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे, सिर्फ भोली को छोड़। हिज सन वर सेंट टू द सिटी टू द स्टडी एट द स्कूल एंड कॉलेजेस। उनके जो बच्चे थे उनको शहर के स्कूल में और बाद में कॉलेजेस में पढ़ाया गया। और राधा जो है उनकी बड़ी बेटी थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। मंगला की शादी जो है फिक्स हो चुकी थी, और उसके बाद चंपा 3rd नंबर पे थी। एक्चुअली वो भी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। तो उनके लिए ये मतलब लड़का ढूंढना का कोई टफ काम नहीं था। लेकिन जो मेन कंसर्न था रामलाल का, वो था भोली, क्योंकि भोली ना ही तो खूबसूरत थी और ना ही इंटेलिजेंट थी। तो इट वॉज़ नॉट एन ईजी थिंग टू फाइंड अ ब्राइड ग्रूम फॉर हर। और ये काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट टास्क उनको लग रहा था, क्योंकि वैसी सिचुएशन में जो है लड़का ब्राइड ग्रूम जल्दी मिलता नहीं है। तो यू कैन सी हियर family picture of Ramlal and Bholi, right? Now let me read. So Bholi was 7 years old when Mangla was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tahsildar Sahab came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. ठीक है। तो इसमें तहसीलदार का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तहसीलदार मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एंड रिप्रेजेंटेटिव मतलब स्पोक पर्सन, जिसको हम लोग स्पोक पर्सन बोलते हैं। ठीक है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट। सो जब भोली 7 साल की थी, भोली वॉज 7 year old व्हेन हर एल्डर सिस्टर मंगला की शादी हो गई थी। और उसी साल जो है मतलब गांव में प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए खोलने का जो है सरकार ने मतलब शुरुआत किया था, विचार किया था, उसने खोला था। और उसके लिए तहसीलदार जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं उस गांव में पहुंचे इनॉग्रेशन में, और उन्होंने रामलाल को बोला कि ही एक्चुअली ही वॉज इनकरेज्ड हिम टू डू सो बिकॉज ही वॉज द रेवेन्यू ऑफिशियल। वो उस गांव में जो है जितने रेवेन्यू से रिलेटेड चीज़ें होती थी उसके वो हेड थे। तो इसलिए उन्होंने जो तहसीलदार साहब थे, उन्होंने रामलाल को इनकरेज किया कि आपको अपनी बेटी को जो है मतलब गांव स्कूल में भेजना चाहिए। गांव में जो स्कूल खुला प्राइमरी, तो तहसीलदार साहब ने रामलाल को रिक्वेस्ट किया कि वो अपने बेटी को जो है स्कूल में भेजे, ताकि बाकी के जो दूसरे गांव वाले हैं वो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझें और अपनी भी बेटी को वो उस गांव में एजुकेशन के लिए भेजना शुरू करेंगे।
Now wait just 1 second. That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girl go to school, who will marry them?" But Ramlal had not the courage to disobey the Tahsildar. At last, his wife said, "I will tell you what to do. Send Bholi to school. As it is, there is little chance of her getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teachers at the school worry about her." Now, कंसल्टेड दैट मीन्स डिस्कस्ड, और इसमें कोई ऐसा वर्ड मीनिंग तो मुझे लग नहीं रहा। नाउ इतना सुनने के बाद जो तहसीलदार है वो अपनी बीवी से बात करता है, अपनी वाइफ से बात करता है, और लाइक शी एट वंस रिजेक्टेड इट बाय सेइंग कि अगर वो पढ़ जाएगी तो मतलब उसकी शादी नहीं हो पाएगी, कि क्योंकि कोई पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेगा नहीं। अब रामलाल वॉज नाउ डबल माइंडेड। रामलाल के दिमाग में दो बातें चल रही थी, क्योंकि एज ही डिड नॉट वांट टू डिसोबे द तहसीलदार, उसको तहसीलदार की बात को डिसोबे करना नहीं था, और दूसरे हाथ पे मतलब उसकी वाइफ जो है वो भी सही थी। तो उसने एक तरकीब निकाला, उसने एक फाइनली ही हिज वाइफ सजेस्टेड टू सेंड भोली। बाद में उसकी वाइफ ने ही मतलब रामलाल को सजेस्ट किया कि ठीक है, भोली को जो है स्कूल भेज दो, क्योंकि वहाँ पे जो है टीचर वहाँ पे अगर रहेंगे तो वो उनके साथ में कुछ सीख जाएगी, क्योंकि जिस तरीके का उसका फेस है, अगलीनेस है, उसके साथ में इसकी शादी होने से तो रही, राइट। तो इसके कारण से उसको मतलब स्कूल में भेज दो, और वहाँ के टीचर जो है उसका ख्याल रखेंगे और उसके पढ़ाई के बारे में या जो भी है वो देखभाल करेंगे। नाउ the next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I'll take you to the school." Bholi was frightened. दूसरे दिन जो है रामलाल उसको भोली को उसका हाथ पकड़ के और बोले, "चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ।" और भोली काफ़ी डरी हुई थी। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, एज दिस स्टोरी इज लॉन्ग and the story is explained line by line, so it will take a little bit time. So do just subscribe the channel for more notification of the videos, latest videos. Now we'll meet in the next part of the video. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you everyone.